بات کریں گے یا آپ سوال ان سے پوچھیں کہ ان کا موقف اس پہ ٹھیک کیا ہے، مطلب اشرف انصاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ مان صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب، جناب خالد مکشی صاحب، جناب اسرار ترین صاحب، جناب احسان نورکی صاحب، محترمہ روبینہ عرفان صاحبہ اور دیگر قائدین، السلام علیکم۔ میں اپنی طرف سے اور متحدہ اپوزیشن کی طرف سے میپ بلوچستان کے 4 MNAs کا متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دینا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہم ان ساتھیوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو انہوں نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے اور یہ فیصلہ انہوں نے بطور ایک جماعت کے کیا ہے، ہم اس کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ بلوچستان اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں حکومت جو بنے گی، ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کی محرومیاں، ان کے مشکلات، ان کے مسائل کے لیے ہم صدقے دل کے ساتھ ان کے ساتھ کام کریں گے اور انشاءاللہ ان کو یقین دلاتے ہیں کہ اس وقت جو انہوں نے جوائنٹ اپوزیشن کا ساتھ دینے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم بلوچستان کے عوام کے مفاد میں اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہم بھرپور ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور ساتھ دیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور جناب صدر آصف علی زرداری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے فاضل دوستو، السلام علیکم۔ یہ خالد بھائی کی بلوچستان کی مجھ پہ ادنا فقیر پہ بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے عزت دی، وہ میرے پاس آئے اور میں نے ان سے ڈائلاگ شروع کیا اور ان کو میں نے سمجھایا کہ پاکستان میں اگر بلوچستان کی خدمت کر سکتا ہے تو وہ ہم جو اپوزیشن میں اس وقت بیٹھے ہیں وہ خدمت کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کی قدر بھی جانتے ہیں، آپ کی دھرتی کی قدر بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بلوچستان ہے تو پاکستان ہے، اگر بلوچستان نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس مقام پہ بلوچستان کی مجبوریوں کو اور ان کے دکھوں کو اس مقام پہ جا کے ہم ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک دفعہ دوبارہ جہاں سے سلسلہ ختم ہوا تھا وہاں سے شروع ہو۔ اور دوستو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل نو کانفیڈنس کا موسم ہے اور انشاءاللہ بڑی جلدی ہم شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنائیں گے اور بلوچستان سے بھی منسٹرز لیں گے جو کہ آپ کی خدمت کریں گے۔ تھینک یو۔ جی بانو صاحب آپ بات کریں۔ اب میں جناب مولانا فضل الرحمان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ لے لیں، چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جس مقصد کے لیے یہ تقریب اور یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، میں اس حوالے سے
जनाब हाजी मक्सी साहब और बलूचिस्तान से कौमी असम्बली के वो अरकान जिन्होंने अदम एतमाद की तारीख में मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ दिया है, उनके फैसले का खैर मक़दम करता हूँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। जहाँ तक बलूचिस्तान का मसला है, उस हवाले से इन नेक ख्वाहिशात का इजहार जनाब मियाँ शाहबाज शरीफ साहब ने और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। मैं उस पर इतना इजाफा करना चाहता हूँ कि जमीयत उलमाए इस्लाम का पार्लिमानी बेस या खैबर पख्तूनख्वा सूबा है या बलूचिस्तान है, और जहाँ खुद बलूचिस्तान के बराह रास्त नुमाइंदगान बलूचिस्तान की तरक्की के लिए फिक्रमंद है। हम उस हवाले से खुद बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुद्दई हैं, उनके शाना बशाना है, और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान के मसाइल पर बलूचिस्तान के अवाम का हक, उसके लिए हमें कदम बकदम अपने साथ पाएंगे और इंशाअल्लाह इस मकसद को हम हासिल करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमारा हाथ नासिर हो और अल्लाह ताला उनके इस फैसले को कबूल फरमाए और इस पाकिस्तान की बेहतरी का सबब बनाए। बहुत शुक्रिया। जी खालिद मक्सी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा अहम दिन है और ये एक बड़े सारा जो मरला है एक बड़ी मशावरत के साथ अपने साथियों के साथ हमारे जो मेम्बरान थे हमारे पार्टी के सरार करीम साहब, रेकी साहब, रवीना खान साहिबा, और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारे लिए जो इस वक्त मौका है और एक मुत्तहदा अपोजिशन पिछले तजुर्बात के बाद एक नए इरादे के साथ आई है, तो इसलिए हमने इनकी दावत को कबूल किया और हम चाहते थे कि अब एक नए अंदाज में इस मुल्क को संभाला जाए बलूचिस्तान, इसलिए हमने इनकी दावत को कबूल किया और हम चाहते थे कि अब एक नए अंदाज में इस मुल्क को संभाला जाए बलूचिस्तान खसूसन 72 साल से मैल्यून का शिकार है। हम चाहते हैं कि उसको पूरे तरीके से इस तरह तवज्जो की जाए और उसके मामला को हल किए जाए, मतलब लटका के ना रहे। और इसी बुनियाद पे हमने सोचा कि हम ये एक कदम उठाते हैं, क्योंकि पहले भी हम टेस्ट में 3.5 साल हमने गुजारे, उनकी गिला या शिकवा का टाइम मुनासिब नहीं है, और हमने फैसला कर लिया है इंशाअल्लाह, और अल्लाह मालिक है, एक अच्छी नीयत से किया है, हमारा अल्लाह मदद भी करेगा, हमारा आमिर नासिर भी है। शुक्रिया। एक मिनट मैं मैंगल साहब से कहूँगा जी, मैंगल साहब। हम सोच रहे थे हमारी बलूचिस्तान की आवाज वहां से नहीं आती, हमारी तो यहाँ भी आप लोगों को सुनाई नहीं देती। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर जनाब खालिद मक्सी साहब को अपोजिशन के इस कैंप में आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है उसमें बलूचिस्तान के इशू को हमने पहले दिन हाईलाइट किया था, और वो आपसे ढकी छुपी बात नहीं है। जिस अंदाज में हमें नज़रअंदाज किया गया, वो बलूचिस्तान के मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय हमारा जो है मजाक उड़ाया गया। मेरे ख्याल में आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान ने जिस अंदाज में आज इस
बलूचिस्तान के इशू को सामने रखते हुए अपोजिशन की कैंप में किए। और मैं समझता हूँ अब अपोजिशन ने जिस मकसद के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इरादा किया था, दिन ब दिन हमें उस मरहले पर पहुँचने में जो है हमें कामयाबी नसीब हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला अब जिस तरह मैंने आज सुबह भी कहा था कि तमाम मौके इस्तेमाल किए गए कि वोट ऑफ नो पर जो है डिले किया जाए, लेकिन जितना भी डिले किया जाए उसमें जो है आपने खुद महसूस किया होगा कि अपोजिशन की तादाद कम हो रही है और हुकूमत की तादाद में जो है वो माइनस की तरफ है। मैं एक बार फिर उनको अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से एजाज साहब। किया था तो जो उस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ जो इक़दाम हुआ था, आप क्या उसकी मजम्मत करते हैं आज भी? और दूसरा, 3 मोअज़्ज़ज़ रहनुमा जो एक सवाल क्विकली शहबाज साहब और आसिफ जरदारी साहब और जनाब मौलाना साहब, अनडाउटेडली आपने मौजूदा जो हाइब्रिड सिस्टम है उसको लाया है जिसको इमरान खान साहब लीड कर रहे थे। क्या आप तीनों हज़रात इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल है वो सियासतदानों से बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको कम कर दें और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी मजबूत हो? क्या इसको इंश्योर करेगा? थैंक यू। बिलावल साहब। आपको बहुत शुक्रिया यार। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये जो जदोजहद है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का बहाली, पाकिस्तान में सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करने का जो जदोजहद है, ये एक दिन का जदोजहद नहीं हो सकता। हम तो 3 नस्लों से ये जदोजहद लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। जो आज कदम उठाया गया है यूनाइटेड ऑपोजिशन से, ये हमने जमहूरियत की बहाली के लिए किया। और जो पाकिस्तान की तारीख है, जो पाकिस्तान का माजी है, कभी इस जमहूरी अंदाज में किसी रजीम को चैलेंज नहीं किया गया और हमने कोई वो ऑप्शन नहीं अपनाया जो गैर जमहूरी हो। हम अदम एतमाद में यकीन रखते हैं, जमहूरियत में यकीन रखते हैं और हम सलाम पेश करते हैं मक्सी साहब को, इस बात को, MNAs को। कल मुफ्ती साहब ने भी हमारे साथ दिया। बलूचिस्तान के अवाम हमेशा से सबसे बहादुर, सबसे मुहिब वतन रहे हैं और मिलके इंशाअल्लाह ताला जिन इश्यूज का आपने जिक्र किया उनका भी हम मुकाबला करेंगे और जो पाकिस्तान के बाकी मसाइल उनका भी हम मिलके मुकाबला। जी मदीन साहब, एक मिनट अकरम साहब, एक मिनट। मदीन साहब सवाल आपके पास भेज दिया। जी ये कल इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ अपनी तकरीर के एंड में किया और इसके लिए मैं जरदारी साहब से, शहबाज साहब से और मौलाना फजल से पूछना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान की सियासत के अंदर सरगर्म हैं, उनकी हुकूमत गैर मुल्की फंडिंग के साथ हटाई जा रही है जिसमें लोकल कैरेक्टर्स शामिल हैं। तो उनका इशारा बड़ा वाज़ेह तौर पर अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ था कि ये गैर मुल्की फंडिंग और गैर मुल्की हाथ के साथ खेल रहे हैं। तो आज आप बता दीजिए कि क्या अपोजिशन किसी गैर मुल्की ताकत के साथ इन टच है? खान साहब के क्लेम पर आप कैसे कमेंट करते हैं? थैंक यू। शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब को पहले अपने गरेबान में झांकना चाहिए। ये सवाल करते वक्त गैर मुल्की मुदाखलत जो फ़ॉरेन फंडिंग है उसके बारे में उनकी क्या राय है? फ़ॉरेन फंडिंग पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जहाँ जहाँ लिमिटेशन है और ममनू है उसकी सरियन खिलाफ वर्जी की गई। एक दूसरा, इमरान खान से हमारे इख्तलाफात हैं और ये हमारी जमहूरी जंग है उनके ख़िलाफ़, लेकिन अगर वाकई कहीं गैर मुल्की मुदाखलत हुई है, अगर गैर मुल्की मुदाखलत पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ है तो आएँ, मैं चैलेंज करता हूँ, पार्लियामान में आएँ, वो लेटर लेके आएँ, दिखाएँ, पूरी पार्लियामान को, पूरी कौम को दिखाएँ।
اگر واقعی وہ ثبوت دیں گے کہ یہ مداخلت ہے غیر ملکی، پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے وقار کے خلاف ہے، تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اور اگر یہ وہی جھوٹا لیٹر ہے جس طرح انہوں نے 27 ارب روپے کی کرپشن، جاوید صادق کہ جناب میرا فرنٹ مین ہے اور اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں، وہ لیٹر کا لیٹر ہے، اسی طرح کا یہ کاغذ ہے۔ اور اگر واقعی اس میں سچائی ہے تو پارلیمان میں آئیں، پوری پارلیمان کو اعتماد میں لیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، میں درج کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈبکیاں کھاتی ہوئی کشتی ہے اور ہمیں کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ مفروضوں کی بنیاد پر اپوزیشن کے بارے میں اس قسم کا تعصب، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالت نظم میں اللہ تعالیٰ کلمہ بھی قبول نہیں کرتا، تو حالت نظم میں اس قسم کی باتیں، دیکھی ہوئی کی باتیں، یہ اب کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہم تعارف دنیا میں یہی رکھتے ہیں، ہماری شناخت دنیا میں یہی ہے کہ اینٹی استعمار، عالمی قوتوں کی مداخلت کے خلاف ساری زندگی ہمارا یہ کارڈ نہیں ہے، یہ کاز ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ جن آقاؤں نے اپنے ایجنڈے کے لیے ان کو پاکستان بھیجا تھا، پاکستان پر حکمرانی کے لیے اس کو باقاعدہ تیار کیا تھا، اس کے لیے این جی اوز نے 15-20 سال تک مسلسل محنتیں کی، ان پر انویسٹمنٹ کی۔ اب جب وہ اپنے آقاؤں کے مقاصد پورے نہیں کر سکا، اور جیسے قرآن کہتا ہے وَكَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، کہ اپنے آقا کے اوپر بعض غلام بوجھ بن جاتے ہیں، جدھر جاتے ہیں کوئی خیر کا کام لے کر نہیں آتے، ناکامیاں ناکامی لے کر آتے ہیں۔ یہ اب ان آقاؤں کا اس طرح کا ایک غلام بن گیا جو خود آقاؤں پر بوجھ ہے، اس کا ذمہ دار ہمیں نہ ٹھہرائے، اپنی نااہلی، اپنی نالائقی، اپنی کارکردگی کا جائزہ لے، جس طرح قوم کی نظروں میں گر چکا ہے، بین الاقوامی برادری کے نظر میں بھی گر چکا ہے، اور اپنے آقاؤں کی نظر میں بھی گر چکا ہے۔ اپنی ناکامی کو روئے۔ ایک نااہل انسان کو پاکستان پر حکمرانی کے لیے تیار کرنا یہ امریکہ کی بھی حماقت تھی، یورپ کی بھی حماقت تھی، اسرائیل کی۔ اور سوال ہے اللہ جان جی، آپ نے تقریباً 4 سال پہلے نواز شریف کی حکومت کس کے کہنے پہ کرائی ہے؟ کیا آپ کو افسوس ہے اس واقعے کا؟ کوئی سنجیدہ سوال بھی کیا کرو نا۔ جی نادر قربانی صاحب، یہ کہا تھا اور تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا۔ آپ کو ایک منٹ ذرا میں جواب دوں گا۔ آپ کو یہ جو سوال کرنا ہے کس کے کہنے پہ، یہ کیوں آپ فوج کا نام نہیں لے لیتے ڈر ڈر کے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ بولے نا کہ آپ نے کیا فوج کے کہنے پہ کی تھی؟ بھائی اگر چلو میں نے کی تھی تو کیا ہے، کی تھی میں نے، کوئی ہے اس میں گناہ؟ کوئی انڈیا کی فوج کے کہنے پہ کی تھی میں نے؟ اب ڈائریکٹ ان باتوں پہ سوال ٹیڑھے نہ کیا کریں۔ آج جو مقصد ہے، آپ لوگ ٹیڑھے سوال کریں گے تو ٹیڑھا جواب آئے گا بھائی۔ جی نادر بھائی مجھ سے سوال کر رہا ہے، بٹ نادر آپ تو شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے جب مارچ 8 کو عدم اعتماد جمع کیا، تب سے ہمارا نمبر مکمل ہے، اور ہم ضرور اتحادیوں سے بھی رابطے میں تھے اور ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم یہ کام اکیلا نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ کام اتحادیوں کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آگے جا کے جو ریفارمز ہونا ہے، جو الیکٹورل ریفارمز ہونا ہے، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے، ہم نے مل کے کنسنسس کے ساتھ ان مسائل کا سامنا کرنا ہے۔ اور جو آج بلوچستان عوامی پارٹی نے فیصلہ لیا، یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے، اور میں اس لیے ان کا اس فیصلہ کا اس بات کی تعریف
तारीफ करता हूँ, सियासत तो चलता रहता है और सियासी इख्तलाफात कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी हम कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी खास तौर पर सियासतदान अपना ज़बान पे कायम नहीं रहेगा, आपके पास जितना भी एहसास है, जितना भी पैसा, जितना भी ताकत, मुफ्ती साहब ने ज़बान दिया तो कल मुफ्ती साहब ने आपके सामने अपना ज़बान में खड़ा होके ऐलान किया। मुझे बाकी जमातों का अभी तक उनके ऐलानात उनकी मर्जी के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला वो आप मुनासिब मौके से करेंगे। हम अपने नंबर्स, अपना तादाद जो है वो पूरा है, अब हम एक्स्ट्रा में जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा तादाद बढ़ता है। देखिए, एक बात मैं करना चाहता हूँ, ज़रा मेरे एक गुजारिश सुन लीजिए, एक मिनट वो रिप्लाई कर रहे भाई, फिर से मेरी गुजारिश सुन लें। देखिए, एक बात मैं करना चाहता हूँ, आप लोगों ने काफ लीग के फैसले का हवाला दिया है, अभी भी उनके साथ बातचीत जारी रखने की गुंजाइश मौजूद है, उससे हम बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन इतना बता दूं कि जहां उनके पास 7 की तादाद थी और बाब के साथ 5 की तादाद थी, अब बाब की तादाद तकरीबन 7 हो गई है, उनकी तादाद 5 हो गई है। जी थैंक यू जी, थैंक आपने सर कर दे जी। मैं आखिर में जनाब जी वालों को सवाल लेने दें। पार्टी को वजूद को आज तक आपने जो है वो तस्लीम नहीं किया। मौलाना साहब ने भी जब भी बीएपी की बात हुई तो उन्होंने कहा ये सेलेक्टर्स की पार्टी है, तो आज वही बीएपी के अरकान जो है वो आपके साथ बैठे, इस पर क्या कहेंगे? इसका मैं जवाब दूंगा सर, पहले मैं दूं फिर मक्सी साहब रिप्लाई कर रहे हैं। तो अपना हमारे बारे में बात की ना, तो जी बात सुने, मैं पहले आपको अपना, आपने मेरा नाम लिया ना तो फिर वो सफाई पेश करेंगे अपनी। हमें देखें, तस्लीम ना करना इख्तलाफात की बुनियाद पे ना नहीं किया होगा, मगर ये बार बार मैं आपको सबको अर्ज़ करता हूँ, देखें आप मेरे भाई हैं, ये आपका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, पाकिस्तान की फ़ौज भी हमारी है। तारीख़ में जाएंगे, हालात को आप देखेंगे, फिर तो बहुत अजीब हालात गुज़रे हैं। उन चीज़ों को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक अच्छा माहौल मिला है। जब वो साइड पे हैं, उनको साइड पे भी आप लोग नहीं माफ़ करते, जब वो मुदाखलत करते भी आप उनको माफ़ नहीं करते। तो मेरी आप सबसे अर्ज़ है कि थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दें। किसने बनाया, किसने किया, आप ये दें कि हालात कैसे हैं, मुल्क के हालात ठीक कैसे होंगे। अगर फ़ौज ने उतारा या फ़ौज ने लेकर आए, कैसे मुल्क के हालात ठीक होंगे? आपका ये सवाल अगर हो, आपको अगर जवाब मिल जाए चलो फ़ौज लेकर आई है, फ़ौज उतारती है, आपके दिल खुश हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। तो प्लीज़ सवाल वो मकसद हो और आगे चलने की बात करें। बहुत शुक्रिया। मैं जी बस मैंने जवाब, आप मुतमईन नहीं है उस जवाब से? मैं दे दूं? चलो, यहाँ पर जो हम बैठे हुए हैं ये भी तो कभी एक पेज पे नहीं थे ना, आज हम सब एक पेज पर आए हैं। एक पेज पर हमें लाने वाले हालात हैं और उनको दुआएं दो जो हमें दिलबर बना दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। बलूचिस्तान अवामी हालात है। ऑपोजिशन के लोग इस वक्त कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और क्योंकि आज ही के कुछ घंटों में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई। ये जनाब खालिद मक्सी साहब ये यहाँ